So this is your last topic of second unit, your steady state errors. ठीक है? What is this steady state error? Any physical control system is inherent suffers steady state errors in response to the certain types of input. It means कि steady state error means the error at the steady state when you approximately achieve the desired output. Then that error, the error at that time is called your steady state error when you are approximately achieve the desired output. So a system can have a steady state error or cannot have a steady state error. It do not compulsory that it can have a error always. It may be zero, it may be some constant, it may be infinite in some cases also. So infinite here infinite means it's never achieving its desired value. ठीक है? So classification of control system. A control system can be classified according to the ability to follow the steps: input, ramp input, parabolic input. कि how it is handling the different types of input. A system, if we are giving a step input to a system, then what are the errors, how it behaves. If we are giving the ramp input, then what its behavior. If we are giving the parabolic input, then what's the response of the system. जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में निकाला था स्टेप के लिए अलग, रैंप के लिए अलग, पैराबोलिक के लिए. नाउ वी आर फाइंडिंग द एरर्स फॉर दीज. हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका रिस्पॉन्सेज निकाले, सेकंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सेज निकाले, देन वी आर फाइंडिंग द एरर्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट. ठीक है? So these the magnitude of these steady state error due to these individual inputs are indicative of goodness of the system. जितना स्टेडी स्टेट एरर का मैग्नीट्यूड है कम, उतना ही सिस्टम आपका बेटर होगा. जितना स्टेडी स्टेट एरर कम है, उतना ही आपका सिस्टम बेटर होगा. तो इट दे आर द इंडिकेटर ऑफ द गुडनेस ऑफ द सिस्टम. हाउ गुड a system is defined by the steady state error of the system. Lesser the error, lesser the steady state error, lesser more stable is the system. So let us consider a standard transfer function of a system. ये standard transfer function है. It is having some zeros, it is having some poles, it is having a gain k, and it is having some poles at 0. Some poles at 0. This your s to the power n. These are the poles at origin. You can say 0 or you can say origin. S equals to 0. So they are n, s to the power n. That means n poles are at origin. So the term s to the power n in the denominator represent n poles at origin. Okay, what we are I was telling. Now there is a term type of the system. जैसे हमने देखा था कि the order of the system is the highest power of s in the denominator of a transfer function. The type of the system is the number of poles at origin is called the type of the system. Number of poles at origin is called type of the system. So here s to the power n means there are n poles are at origin. So the type of the system will be, the type of the system will be, in this case is n, it will depend on n, will depend on n. So a system is called zero type, type 1, type 2 if n equals to 0, n equals to 1, n equals to 2 respectively. अगर n equals to 0 है, अगर यहाँ पे s ये है ही नहीं, that means type 0 है. if n equals to 1 है यानी s to the power 1 है यहाँ पे इस particular point पे. Let me change my color pen color, this. अगर यहाँ पे n equals to 1 है, that means आपका type 1 है. यहाँ पे अगर s to the power 2 है तो type 2 है. So आप डिफरेंस समझें. मैं एक आपको ट्रांसफर फंक्शन लिख के दिखाता हूँ. लेट अस टेक a transfer function gs equals to 100 upon s plus 1 s plus 2. ठीक है? So this is a transfer function s into s plus 1 s plus 2. So the type of the system will depend on the number of poles at origin. यहाँ s की सिंगल s की पावर क्या है, तो it is 1. So इसका टाइप जो है, the type of this system is your 1. ठीक है? Now order of this system, the order of this system will be your maximum power of s. आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो s to the power 3 आएगा maximum, तो that will be 3.
टाइप इज नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, पोल से रिलेटेड है वो, ऑर्डर इज नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, क्लियर है टाइप एंड ये. So on that basis we classify the error, steady state error, different steady state error of the control system. So as the type increase, accuracy is improved. जैसे जैसे टाइप इंक्रीज होता है एक्यूरेसी इंप्रूव होती है. दिस इज ए कंक्लूजन. ये कंक्लूजन इस स्टडी स्टेट एरर को पूरा पढ़ने के बाद ही आएगा. इट इज ए प्री कंक्लूजन. ठीक है. So however the increasing the type number aggregate the stability problem. एक ये ऑब्जर्वेशन है, कंप्रोमाइज बिटवीन द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी एंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी इज ऑलवेज नेसेसरी. सो लेट अस कंसीडर ए स्टैंडर्ड फीडबैक सिस्टम विद यूनिटी फीडबैक. ठीक है, तो ना क्लोज लूप एक फीडबैक सिस्टम है जहां पे फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू जीएस है. जीएस हमने एक स्टैंडर्ड जीएस लिया है. दिस इट कैन हैव एन नंबर ऑफ पोल्स, इट कैन हैव एन नंबर ऑफ जीरोस. ठीक है सर, हटाना मत. सो So this is your standard transfer function gain GS. फीडबैक मैंने 1 ले लिया तो इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ गया GS अपॉन 1 प्लस GS. ठीक है. नाउ द ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन द एरर सिग्नल ES एंड द इनपुट सिग्नल RS इज दिस. आपको याद हो, लेट अस कंसीडर दिस पर्टिकुलर डायग्राम. तो यहां से आप क्या निकालोगे, योर CS, दिस CS क्या है, यहाँ GS है और यहाँ सिग्नल आ रहा था ES. तो CS विल बी योर GS into ES, where ES is the error signal into ES. ठीक है, CS will be your GS into ES. तो अगर इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में मैं CS इक्वल टू GS into ES रख दूं. इस इक्वेशन में मैंने रख दिया. लेट मी पुट, इसको मैं इधर लिख देता हूं. योर CS विल बी GS into ES इक्वल्स टू डिवाइड बाय RS. तो CS की वैल्यू दी मैंने GS into ES डिवाइड बाय RS. तो GS से GS कैंसिल आउट हो जाएगा. तो माई ES बाई RS इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस GS. तो माई ES बाई RS विल बी 1 अपॉन GS. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरर सिग्नल. अब मैं RS को उधर ले जाता हूं फाइनली. ठीक है, तो माई एरर सिग्नल, माई एरर विल बी 1 upon 1 plus GS into RS. ठीक है, this is my error signal. Now this is error at any instant. Now I have to find the steady state error. Steady state error means when S tends to infinite. When S tends to infinite, the steady state error is where ES, steady state error, limit t tends to infinite, where ET equals to 0. When I reach the final value of the system at, let's say, at t tends to infinite, at that time I have to find the error. So by the final value theorem, limit t tends to infinite, ET equals to limit S tends to 0 SES. ये फाइनल वैल्यू थ्योरम होती थी जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ी थी. The theorem states that the limit of a time domain function where t tends to infinite is equals to the limit of S tends to 0 S into Laplace of that function. S into Laplace of that function. ठीक है, तो मैं यही चीजें यूज करता हूँ. आई हैव टू फाइंड द फाइनल स्टेडी स्टेट एरर एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट. तो उसके लिए मैं ये फंक्शन यूज करता हूँ. तो आई विल गेट माय स्टेडी स्टेट एरर इन लाप्लास डोमेन लिमिट s टेंड्स टू 0. ये ES की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे पूरी, इनटू S और हो गया इसमें, यहाँ पे एक S की मल्टीप्लाई हो गई. तो लिमिट s टेंड्स टू 0 S दिस RS अपॉन 1 प्लस GS. 1 plus GS, RS upon 1 plus GS. So this is my steady state error in the Laplace domain. दोबारा से देखो मैंने क्या किया. मैंने पहले एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम लिया, क्लोज लूप ब्लॉक डायग्राम, जहाँ फीडबैक में यूनिटी, मैंने HS को यूनिटी फीडबैक ले लिया. in this particular diagram my CS will be GS into ES. यहाँ से ES सिग्नल आ रहा है, GS की मल्टीप्लाई होगी तो हमारी आउटपुट विल बी CS into GS. तो मैंने CS की जगह यहाँ पे GS into ES रख दिया. GS into ES रखा तो
GS से GS कैंसिल हो गया, माई I got ES by RS equals to 1 plus GS. Then ES equals to 1 plus GS into RS. Then I have to find the final value of this particular function at t tends to infinite. तो final value theorem लगा के मैंने कर दिया, limit as t tends to 0 et, limit s tends to 0, limit s tends to 0 s into es. तो मेरी स्टडी स्टेट एरर इन दी लाप्लास डोमेन आ गई, limit s tends to 0 s rs 1 plus gs. Now the error coefficients. The error coefficients are figures of merits of control system. It the error coefficient स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, just so your error coefficients are of three types: your position error coefficient, velocity error coefficient, and pressure error coefficient, or temperature error coefficient, like this. Now, so these error coefficients are depending on the input provided by the system. देखो ये हमारा ओवरऑल फाइनल स्टेडी स्टेट एरर की फॉर्मूला निकल के आया था, माई ई एस, माई स्टेडी एरर एट स्टेडी स्टेट इज लिमिट एस टेंस टू 0 एस आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस. ठीक है, तो इट्स होल, देखो जी एस इज फॉर ए सिस्टम योर गेन इज सेम. आपने एक बार सिस्टम बना दिया, उसमें कुछ रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस और इंडक्टर्स लगा दिए, तो जीएस की वैल्यू तो फिक्स हो गई, आप बार बार रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस चेंज नहीं करोगे. योर आरएस इज वेरिएबल, आरएस इज द इनपुट. तो इनपुट पे अलग अलग इनपुट्स पे क्या स्टेडी स्टेट एरर है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. पहला मेरा एरर कोएफिशिएंट होता है माय स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट, माय स्टैटिक position error constant, which is dependent on the unit step input. The steady state error of a system for unit step input. जब मैं unit step input की बात कर रहा हूँ, in that case my RS equals to 1 by S. Here my RS equals to 1 by S. 1 by S. तो RS की वैल्यू मैंने 1 by S रख दी यहाँ पे, ये देखो, ठीक है. I put it RS equals to 1 by S. Then अगेन एस से एस कैंसिल हो गया, माई ई एस इक्वल्स टू 1 अपॉन, लिमिट रख दी मैंने 1 अपॉन 1 प्लस जी जीरो. अब जी जीरो विल टेंस टू योर लेट्स उसमें मैंने ले लिया लेट जी जीरो द स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट केपी इज डिफाइंड बाय केपी इक्वल्स टू, इस लिमिट को मैं चेंज कर गया, इस लिमिट को मैं यहाँ ले गया, लेट्स से लाइक लेट मी क्लियर लाइक दिस, इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस, जो एस से एस कैंसिल हो गया, अब 1 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, माई लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस, माई लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस. तो मैं मेरे ई एस की वैल्यू हो गई, स्टडी स्टेट की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1 प्लस लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस. ठीक है, अब ये एस की जगह मैंने 0 पुट कर दिया. तो लेट से आई सेड दैट लेट केपी, let this term equals to kp, let this term limit s tends to 0 gs or g0 is kp, which is my static error coefficient due to unit step input only. So my steady state error in terms of static error coefficient is given by this. So if I provide, listen carefully, if I provide a unit step input to my system, to my any system, any type of system, then the steady state error will be given by 1 upon 1 plus kp. 1 upon 1 plus kp. This is the steady state error for a unit step input, for a unit step input with unity feedback. 1 upon 1 plus kp, where kp equals to limit s tends to 0 gs. अब gs की जो भी वैल्यू आपको दी होगी, आप gs की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, gs में s की जगह 0 पुट कर दोगे, वहां से वो kp की वैल्यू निकल आएगी. तो माई एरर विल बी फॉर यूनिट स्टेप इनपुट 1 अपॉन 1 प्लस, ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे आपकी kp की, वो आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे. और it is your kp, 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 or you can say g0, the value of gain at 0. ठीक है, तो this is the static error, static position error coefficient. Again next for type 0, let's say type 0, आपको gs की वैल्यू याद हो, अब kp
ध्यान से देखना, this kp is is equals to the limit s tends to 0 gs. तो gs is my standard transfer function. Let us say gs is a standard transfer function. ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ gs जो है वो टाइप 0 सिस्टम है. टाइप 0 जब सिस्टम है तो यहाँ पे जो s टू द पावर n हमने लिया हुआ था gs में, that will n equals to 0. टाइप 0 है तो n equals to 0, तो ये s टू द पावर n कैंसिल हो गया. ठीक है, नाउ फॉर टाइप 0 kp की वैल्यू आपकी डिपेंड करेगी इस पर्टिकुलर फंक्शन पे. दिस इज योर kp. लेट्स से इट k और kp, इट्स kp. ठीक है, तो इट इज kp. नाउ फॉर टाइप 1 सिस्टम, इफ इट इज ए टाइप 1 सिस्टम, ठीक है, तो अगर टाइप 1 सिस्टम होगा दिस s टू द पावर n विल बिकम 1. इट विल बी s टू द पावर 1. नाउ अगर जब मैं इसमें लिमिट रखूंगा, व्हेन आई पुट s इक्वल्स टू 0 इन इट, then always I get 1 upon 0. ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. This whole become, forget this infinite now, this whole become 0 here, क्योंकि s equals to 0 पुट करूंगा मैं लिमिट में, and this will be having some value, कुछ भी इसकी वैल्यू होगी, whatever its value is, but it will be k upon 0. तो it will be always infinite. It will be always infinite. The value of type, the value of type 1 system, the value of type 1 system with unit step input, the value of error of type 1 system with unit step input is always depends on kp, where kp equals to infinite. ठीक है, so for a unit step input the steady state error is, ध्यान से देखें, es will be 1 upon 1 plus k, sorry kp, 1 upon 1 plus kp for type 0 system. For type 1 or higher the steady state error will be 0. ये 0 कैसे आई? It will be 1 upon 1 plus kp था. तो टाइप 1 या उससे हायर सिस्टम के लिए, टाइप 1 या उससे हायर सिस्टम के लिए यहाँ पे s टू द पावर n आएगा. ठीक है, तो s जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 1 अपॉन समथिंग k अपॉन 0 की फॉर्म हो जाएगी. तो इट विल बी इनफाइनाइट ऑलवेज. तो kp की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी. जब मैं यहाँ इनफाइनाइट पुट करूंगा तो 1 बाय इनफाइनाइट माय एरर विल बी 0 ऑलवेज. सो फॉर टाइप 0 सिस्टम, ध्यान से सुनिए, फॉर टाइप 0 सिस्टम विद यूनिट स्टेप इनपुट, टाइप 0 सिस्टम विद यूनिट स्टेप इनपुट, माय एरर विल बी 1 upon 1 plus kp, जहाँ kp आप इस फॉर्मूले से निकालोगे जो नॉर्मल kp का फॉर्मूला है. ठीक है, लाइक दिस फॉर्मूला लिमिट s टेंड्स टू 0 gs. ठीक है, इससे निकालोगे. देन फॉर type 1 or higher system with unit step input, my error will always be 0. My error will always be 0. Steady state error will always be 0. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. नाउ स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट. स्टैटिक एरर, स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम फॉर ए यूनिट रैंप इनपुट. पहले अभी हमने सारी कैलकुलेशन जो करी वो स्टेप इनपुट के लिए करी. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी these error कोएफिशिएंट फॉर रैंप इनपुट. ठीक है, अब मैंने रैंप इनपुट किया. अगेन एरर का फॉर्मूला क्या था मेरा? एरर का फॉर्मूला था मेरा s इंटू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस, लिमिट s टेंड्स टू 0. तो अब फॉर रैंप इनपुट माई आर एस इक्वल्स टू माई इनपुट इक्वल्स टू 1 अपॉन, फॉर यूनिट रैंप इनपुट माई आर एस इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर. तो ये मैंने 1 अपॉन एस स्क्वायर रख दिया इन आर एस. अगेन सॉल्व करते हैं ऐसे. ठीक है, जब 1 अपॉन एस को मैंने सॉल्व किया, एस से एस कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, इस एस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी योर एस प्लस, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट, इट विल बी योर 1 अपॉन एस प्लस एस जी एस. ठीक है, एंड लिमिट एस टेंड्स टू 0, लिमिट एस टेंड्स टू 0. आप इसमें लिमिट रखोगे, दिस एस इज 0. ये जो एस है ये जीएस पे डिपेंड करेगा कि जीएस की वैल्यू क्या है. ये एस कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो माय टर्म विल बी रिड्यूस्ड 1 अपॉन लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 अपॉन एस प्लस 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो ये फॉर्म हो जाएगी 1 अपॉन 0 प्लस एस जी एस. ठीक है, और लिमिट मेरी ट्रांसफर हो जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर एस प्लस जी एस ओनली. माय दिस function after putting my ramp input value will reduce to es equals to limit s tends to 0, es equals to limit s tends to 0 1 upon sgs. So this is the formula for unit ramp input
let us say this particular function, let us say this particular function kv, this particular function, this limit s tends to 0 s into gs, limit s tends to 0 s into gs, let us say it's equals to kv, which will be called velocity error coefficient, static velocity error coefficient. So my steady state error formula will be now es equals to 1 upon kv, जहां पे मैंने इस पूरे को kv पुट कर दिया, दिस लिमिट इज टू लेट आई अज्यूम इट kv. So my steady state error, ध्यान से सुनिए, my steady state error for unit ramp input will be equals to 1 upon kv, where kv equals to limit s tends to 0 s into gs. ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना. अगेन फिर टाइप 0 टाइप 1 के लिए निकालेंगे हम. फॉर टाइप 0 kv इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0. अब लिमिट यहाँ पे क्या था, kv इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इनटू gs. तो टाइप 0 सिस्टम है मेरा, s तो ये ले गया, s इनटू gs की वैल्यू ये हो गई. टाइप 0 है तो s टू द पावर n जो थी वो 0 हो गई, तो यहाँ पे ये टर्म खत्म हो गई मेरी. ठीक है, नाउ kv इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इनटू दिस. जब आप इसमें लिमिट रखोगे इट विल गिव यू 0 अपॉन समथिंग, लेट्स से दिस t1 into 0 plus 1 like this. So your 0 upon something, your whole function will become 0. इस s की वजह से ये whole function will become 0. ठीक है, तो kv की वैल्यू आ गई आपकी फॉर टाइप 0 सिस्टम, kv इक्वल्स टू 0. खाली kv की वैल्यू है. टाइप 1 सिस्टम के लिए kv अगेन टाइप 1 है तो यहाँ s टू द पावर 1 हो जाएगी, ये s से s कैंसिल हो जाएगा. तो दिस विल डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग k, दिस पर्टिकुलर थिंग. ये सब 0 हो गया, ये सब 0 हो गया, दिस ये पर्टिकुलर k रह जाएगा. तो इक्वल्स टू योर kv इक्वल्स टू k, और वी कैन से kv ऑल्सो. ठीक है, kv की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन दैट केस. नाउ फॉर टाइप 2 और हायर सिस्टम, अब टाइप 0 हो गया, 1 हो गया, वहां पे हमने निकाला था टाइप 0 और 1 और हायर के लिए. यहाँ पे टाइप 0 के लिए तो 0 ही हो गई k की kv की वैल्यू. टाइप 1 के लिए एक पर्टिकुलर k वैल्यू निकल के आई. टाइप 2 के लिए अगेन टाइप 2 है तो ये हो जाएगा s टू द पावर 2 और हायर, 2 और हायर, तो ये हो जाएगा s टू द पावर 2 और 3, मतलब 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. लेट अस कंसीडर 2, s टू द पावर 2. ये इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अगेन इट विल बिकम k अपॉन, it will become k upon 0. तो k upon 0 it will give you infinite. तो kv की वैल्यू टाइप 2 सिस्टम के लिए will be infinite. now error, अब टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 के लिए kv की वैल्यू आई थी मेरी 0. तो टाइप 0 के लिए मैंने, अब मेरा स्टेडी स्टेट एरर, my steady state error for ramp input is having formula k es equals to 1 upon kv. kv की वैल्यू मैंने निकाली टाइप 0 के लिए, 1 के लिए और 2 और उससे हायर के लिए. 1 के लिए मेरी वैल्यू आई kv की 0, मैंने यहाँ पुट करी, तो सॉरी 0 के लिए, तो टाइप 0 के लिए इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन 0 और इक्वल्स टू इनफाइनाइट. तो फॉर टाइप 0 सिस्टम माय स्टेडी स्टेट एरर विल बी इनफाइनाइट विद यूनिट रैंप इनपुट. टाइप 1 के लिए kv की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आई थी k, जो डिपेंड करेगी सिस्टम के गेन पे. तो फॉर टाइप 1 सिस्टम माय स्टेडी स्टेट एरर विल बी 1 अपॉन kv, जहां kv की वैल्यू निकल के आई थी मेरी k, तो इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू की, जैसे कांस्टेंट वैल्यू 1 अपॉन kv. फॉर टाइप 2 एंड हायर सिस्टम माय वैल्यू ऑफ kv इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट निकल के आई थी. सो माय स्टेडी स्टेट एरर विल बी 0, बिकॉज ये 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, इट विल बी बिकम 0. तो रैंप इनपुट के लिए अगर टाइप 0 सिस्टम है देन विल गेट द स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट. अगर टाइप 1 सिस्टम है तो आई विल गेट द स्टेडी स्टेट एरर एज ए कांस्टेंट 1 बाय kv. एंड फॉर टाइप 2 और हायर, 2 या उससे ज्यादा के लिए माय एरर विल बी 0. ठीक है, तो एक बार फिर से देखो, जब मैंने इससे पहले, मैं एक बार पीछे जाता हूँ, रुको, ये इसको ध्यान से देखो, जब मैंने यहाँ के लिए निकाला था तो आई फॉर स्टेप इनपुट के लिए मेरा टाइप 0 के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू आई थी 1 अपॉन 1 प्लस k. ठीक है, और स्टेप इनपुट के लिए मेरा स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला आया था 1 अपॉन 1 प्लस kp. kp की वैल्यू ये थी यहाँ पे. ठीक है, ये आया था फॉर्मूला.
जहाँ पे केपी की वैल्यू मेरी ये थी, ठीक है। एंड अगेन स्टेप इनपुट के लिए ध्यान सुने, टाइप जीरो सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट टाइप जीरो सिस्टम के लिए एरर एक कांस्टेंट आई थी 1/1 प्लस के। इसी फॉर्मूले से निकाला हमने, ये जो पीछे फॉर्मूला था इसी फॉर्मूले से निकाला हमने, ठीक है। बट स्टेप इनपुट के लिए टाइप 1 और उससे हायर सिस्टम के लिए मेरी एरर आया 0, ठीक है। यही चीज मैंने अब रैंप इनपुट के साथ करी, तो जब मैंने रैंप इनपुट के साथ किया तो मेरा फॉर्मूला आया 1/kV ES इक्वल्स टू 1/kV, ठीक है। जहां केवी की वैल्यू आई मेरी, केवी की वैल्यू आई फॉर टाइप जीरो सिस्टम के लिए मेरी केवी की वैल्यू आई थी दिस इज टाइप जीरो सिस्टम के लिए केवी की वैल्यू आई 0, टाइप 1 के लिए केवी की वैल्यू एक कांस्टेंट के आई, टाइप 2 और उससे ज्यादा के लिए इनफाइनाइट आई। तो टाइप 0 के लिए मेरा एरर हो गया इनफाइनाइट क्योंकि केवी 0 था, टाइप 1 के लिए एरर कांस्टेंट हो गया, टाइप 2 के लिए एरर मेरा 0 हो गया, ठीक है। एक और लास्ट टेस्ट के आगे, ये तीनों रिलेटेड है। अगेन अब हम तीसरे इनपुट की बात करेंगे, पैराबोलिक इनपुट। जब मैंने पैराबोलिक इनपुट पुट किया तो मैंने एस टू एस, मेरा इनपुट आर एस की वैल्यू 1/s³ s³ किया, इससे एक पावर कैंसिल हो गई। तो अगेन जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इट विल गिव मी 1/s² प्लस s² इंटू GS। तो जब मैं इसमें s इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी और ये हो जाएगी प्लस s² प्लस GS। इस s में मैं 0 इसलिए नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि दिस s विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस फंक्शन GS। तो ये GS की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो ये हो गया 1 लिमिट को मैं नीचे ले आया, लिमिट s टेंड्स टू 0 s² GS। अगेन नाउ पहले हमने इसे kv लिया था, अब ये s² की टर्म है। नाउ वी लेट इट एज ka which is acceleration error coefficient. Let ka equals to limit s tends to 0 s² GS। तो डिफरेंस क्या है, के पी जो था वो मेरा खाली इक्वल्स टू था जी लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 GS के इक्वल था खाली, ठीक है। जब के वी हुआ वो, तो यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू GS हो गया, और जब पैराबोलिक इनपुट हुआ तो मेरा के ए हो गया तो s² इंटू GS हो गया, ठीक है। तीनों में ये डिफरेंस है। अगेन तो मेरा स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू जो हो गई अब फॉर पैराबोलिक इनपुट माय स्टडी स्टेट एरर ES विल बी 1/KA, ठीक है। 1/KA। अगेन अब मैं KA की वैल्यू निकालूंगा अलग अलग टाइप के इनपुट के लिए। टाइप 0 के लिए KA की वैल्यू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ s² की टर्म आ रही है ऊपर। देखो KA का फॉर्मूला है s² इंटू GS, तो टाइप 0 है तो s² की टर्म ऊपर आ रही है तो ये वैल्यू 0। टाइप 1 है तब भी s² की एस एक एस और आ जाएगा नीचे, इससे एस से एक एस कैंसिल होगा, तब भी ये 1 रह जाएगा, तब भी ये 0 हो जाएगा के। टाइप 2 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, टाइप 2 की वैल्यू हो जाएगी दिस से दिस विल कैंसिल दिस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के, ठीक है। तो s² से s² कैंसिल हो जाएगा। 3 और हायर के लिए अगेन इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगेन फॉर टाइप 0 और टाइप 1 सिस्टम माई एरर विल बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों है, टाइप 0 के लिए और टाइप 1 के लिए के ए की वैल्यू मेरी 0 आ रही है, टाइप 0 के लिए भी टाइप 1 के लिए भी। तो मेरा फॉर्मूला होता है फॉर पैराबोलिक इनपुट माय स्टेडी स्टेट एरर विल बी 1/KA। तो टाइप 1 और टाइप 0 के लिए के की वैल्यू 0 है तो एरर हो गई इनफाइनाइट 1/KA से। टाइप 2 के लिए इसकी वैल्यू है एक कांस्टेंट के, तो एरर हो गई मेरी 1/K, एक कांस्टेंट। टाइप 3 और हायर के लिए के की वैल्यू है इनफाइनाइट, तो माई एरर विल बी 0, ठीक है। तो ये तीन टाइप के इनपुट के लिए हमने तीन कोएफिशिएंट निकाले, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट एंड एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। So these three error coefficients are for the three different type of input: unit step input, ramp input and parabolic input। उनके बेसिस पे हमने we find the error for the different type of input system। So this is a summary, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप इनपुट के लिए जब टाइप 0 था तो एरर थी मेरी 1/K, और टाइप 1 के लिए एरर 0 थी। रैंप इनपुट के लिए जब टाइप 0 था तो मेरी एरर थी इनफाइनाइट। जब टाइप 1 हुआ तो एरर हो गई 1/K, जब टाइप 2 हुआ तो एरर हो गई 0। एक्सेलरेशन इनपुट और पैराबोलिक इनपुट के लिए, जिसे पैराबोलिक इनपुट भी कहते हैं, पैराबोलिक इनपुट के लिए टाइप 0 था तो एरर इनफाइनाइट,
जब टाइप 1 था तो एरर इनफाइनाइट, जब टाइप 2 था तो एरर एक कांस्टेंट एरर हो गई। ठीक है, तो दिस इज द टेबल फॉर एरर। ठीक है, स्टडी स्टेट एरर, योर एस एरर, योर एस एरर, स्टडी स्टेट एरर, नॉट सिंगल एरर, स्टडी स्टेट। जब फाइनल हम डिजायर्ड वैल्यू के अप्रोक्सीमेट पास में होंगे तो एरर क्या होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि स्टेप इनपुट के लिए ध्यान से देखें, जैसे जैसे टाइप बढ़ रहा है, जैसे टाइप बढ़ा, टाइप 0 था तो एक कांस्टेंट एरर थी स्टेप इनपुट के लिए, टाइप बढ़ा तो एरर 0 हो गई। रैंप इनपुट के लिए जब टाइप 0 था तो एरर इनफाइनाइट थी, बहुत ज्यादा थी। जब टाइप 1 हुआ तो एरर एक कांस्टेंट हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। जब टाइप 2 हो गया तो एरर आपकी बिल्कुल कम हो गई, 0 हो गई। ऐसी इसके लिए पहले इनफाइनाइट थी दोनों टाइप के लिए, देन आपकी एरर जो है आपकी एक कांस्टेंट एरर होगी। इसके आगे और टाइप 3 पे जाएंगे तो इसकी एरर 0 हो जाती है। तो जैसे जैसे टाइप बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइप बढ़ रहा है फॉर द सेम टाइप ऑफ इनपुट, अगर मैं स्टेप इनपुट की बात करूं तो जैसे जैसे टाइप बढ़ रहा है आपकी एरर कम हो रही है। ऐसी रैंप इनपुट है, जैसे जैसे टाइप बढ़ रहा है आपकी एरर कम हो रही है। सो एज द टाइप इंक्रीज ऑफ द सिस्टम योर स्टडी स्टेट एरर विल रिड्यूस। एक ये कंक्लूजन से निकल के आता है, एज द टाइप इंक्रीज ऑफ द सिस्टम योर स्टडी स्टेट एरर विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये तीन टाइप के कोफिशिएंट होते हैं, स्टैटिक एरर कोफिशिएंट, पोजीशन एरर, स्टैटिक पोजीशन एरर कोफिशिएंट, स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, स्टैटिक एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट। तो इन तीनों को एक बार आप देख लें, स्टडी करें कैसे हो रहा है ये, देन विल सी सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल एक बार इसको देख लें। ये इज नॉट ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, लेकिन एक बार इसको देख लें कि व्हाट इज दिस। वी बेसिकली तीन फॉर्मूले हैं वहां पे, जहां यूनिट स्टेप के लिए एरर का फॉर्मूला क्या है, रैम के लिए क्या है, एक्सेलरेशन के लिए क्या है। देन जब यूनिट स्टेप के लिए जो आपका, लेट मी गिव यू फॉर्मूला आल्सो, दिस इज द स्टेप इनपुट। यहाँ पे स्टेप इनपुट की बात हो रही, तो इसका फॉर्मूला था हमारा 1/1 प्लस kp। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट। रैंप इनपुट के लिए मेरा फॉर्मूला अगेन ये हो गया था 1/kb। एक्सेलरेशन इनपुट के लिए मेरा फॉर्मूला हो गया था 1/ka। So these are three formulas of steady state error for different type of inputs. जहाँ kp, kv और ka की अलग अलग वैल्यूज है। kp equals to limit s tends to 0 gs, kv equals to limit s tends to 0 s into gs, s की और मल्टीप्लाई हो जाती है, k equals to limit s tends to 0 s square into gs। तो ये तीन फॉर्मूले, और इन kp, kv, ka के फॉर्मूले, these are the important parts. And this table is a conclusion that as the type increase, your steady state error will reduce. टाइप बढ़ेगा तो steady state error कम हो जाएगा। ठीक है, so this is all for today. Let's meet on next. So we'll see one numerical of this, and the second unit will be completed. We will starting the third unit from Tuesday. ठीक है, एक numerical देख के और we'll starting the third unit from Tuesday. ठीक है।